ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸੱਜਣ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਖਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ। ਤਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मैं जंडू साहब ये कहूंगा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश हर 5 साल बाद सत्ता में परिवर्तन करता रहा है और लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस, उसके अगले 5 साल बीजेपी, फिर उसके बाद कांग्रेस, फिर बीजेपी। तो इस बार जो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा साहब, उनसे हमारी कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा इस बार रिवाज बदलेगा, हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज हम बदलने का काम करेंगे और मिशन रिपीट के तहत हम भाजपा को लेकर आएंगे। आप झंडू साहब देख रहे हो जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के इस छोटे से देवभूमि दौरे हो रहे हैं, अमित शाह साहब, केंद्रीय गृह मंत्री साहब के जितने दौरे हो रहे हैं, राजनाथ सिंह जी के जितने दौरे हो रहे हैं, स्मृति ईरानी जी के जितने दौरे हो रहे हैं, और अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, जिनका गृह जिला है, गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश, वो खुद यहाँ आके बैठ गए हैं। यानी कि उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से भाजपा को फिर से सत्ता में लाया जाए। लेकिन कांग्रेस को जो विपक्ष के नेता है मुकेश अग्निहोत्री साहब या राजीव शुक्ला जी जो प्रभारी हैं या पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हैं, उनका ये कहना है कि देवभूमि अपनी परंपरा को नहीं बदलेगा, भाजपा लोगों की आकांक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरी है और इस बार कांग्रेस जो है वो हर हाल में सत्ता हासिल करेगी। इसकी वजह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए थे, मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा, और चारों सीटें कांग्रेस ने जीती थी। भाजपा की सत्ता के बावजूद आमतौर पर झंडू साहब आप देखते हैं कि उपचुनाव का फायदा हमेशा सत्तारूढ़ दल को मिलता है, लेकिन चारों उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद कांग्रेस का यह कहना था कि सेमीफाइनल भाजपा हार चुकी है और फाइनल में भी भाजपा हारेगी। अब देखना यह है कि 8 दिसंबर को हिमाचल के मतदाता, जिनकी देवी देवताओं में आस्था है, जो शांति प्रिय लोग हैं, वो कौन सी पार्टी को सत्ता में आने के लिए चुनते हैं।
ਤਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਰਿਵਾਜ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋੜੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 15 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ नहीं देंगे बागी? झंडू साहब देखिए, केंद्र में भाजपा सत्ता में है, दूसरी टर्म मोदी साहब के नाम पर। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਬਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ। झंडू साहब वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, लेकिन उसका अर्थ आप देखिए कि परमार साहब को मोदी साहब फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप चुनाव मैदान से हट जाइए। वो कहते हैं कि आपका आदेश सर माथे पर, लेकिन जिस ढंग से 15 साल से मुझे नड्डा साहब जिस ढंग से जलील कर रहे थे, उस सूरत में मैं अब मैदान से नहीं हटूंगा, चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मोदी साहब के प्रति परमार साहब की आस्था है, नड्डा साहब के प्रति उनकी आस्था नहीं है। वो मैदान में उतर गए हैं और इस वीडियो वायरल होने का उनको फायदा भी मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ झंडू साहब, भाजपा केंद्र में 2 टर्म से सत्ता में है और मोदी साहब की लोकप्रियता में अभी तक कोई कमी देखने को नहीं मिली है। बावजूद इसके अगर भाजपा से बगावत करके जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें अगर 8-10 आदमी, 7 आदमी, 5 आदमी जितने भी जीतेंगे, आप क्या मानते हो कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे? भाजपा से बगावत करने के बावजूद मैदान में उतरे लोग अंततः जीतने के बाद भाजपा की ही मदद करेंगे। ऐसे में लोगों को ये देखना होगा, मतदाताओं को, कि हमें कांग्रेस को अपनाना है, भाजपा को अपनाना है, या आजाद उम्मीदवारों को या बागी उम्मीदवारों को मदद करके हमें किसी एक पार्टी की मदद करनी है। जाहिर है सत्तारूढ़ दल को हमेशा बागियों का बगावत करके विधानसभा में पहुंचने वाले लोगों का साथ मिलता है, और ये लोग जो बगावत करके मैदान में उतरे हैं, इनमें से ज्यादातर भले ही आज दुखी हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनको भाजपा के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, ਤਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? मैं झंडू साहब ये कहूंगा कि पंजाब और हिमाचल साथ लगते हैं, कभी दोनों स्टेट एक ही पंजाब कहलाता था, लेकिन दोनों की तासीर में बड़ा फर्क है। पंजाब में थोड़े से गरम ख्याली लोग हैं, तुरंत फैसला करते हैं। हिमाचल के लोग शांतिपूर्ण हैं, उनकी भगवान में, हिंदुत्व में आस्था है। वो लोग पंजाब की तुलना में थोड़े शांत स्वभाव के हैं, और पंजाब का असर हम मानते थे कि हिमाचल में भी जाएगा, चुनावों पर उसका असर होगा। आम आदमी पार्टी ने बड़ी तेजी से वहां अपने पांव पसारने की कोशिश की थी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब और दूसरे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने मंडी से इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने रोड शो आयोजित किया। वो मंडी इसलिए चुना कि वो जयराम ठाकुर साहब मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो डेंट मारने की कोशिश थी। लेकिन आपको ध्यान होगा, भाजपा ने आम आदमी पार्टी की तब जो इकाई थी वो पूरी की पूरी भाजपा में शामिल कर ली थी। और मैं समझता हूं कि हिमाचल में तो आज तक लड़ाई सीधी कांग्रेस वर्सेस भाजपा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को तिकोना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब बहुत कुछ कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दी, तो आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की तरफ रुख कम किया। और भगवंत मान साहब ने जरूर दौरे किए, लेकिन केजरीवाल साहब गुजरात में ज्यादा व्यस्त रहे। हो सकता है इसकी वजह यह हो, उन्हें लगा हो कि आम आदमी पार्टी को हिमाचल में अभी अपनी जगह बनाने में कुछ समय और लग सकता है। इसलिए यहाँ समय खराब करने के बजाय अगर गुजरात में समय लगाया जाए तो पार्टी के लिए शायद ज्यादा हितकर होगा। वैसे भी तकशक जी, हिमाचल के अंदर अनुसूचित जातियों की जिहड़ी आबादी है वो कहते हैं कि 25% के करीब है, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ नहीं ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। झंडू साहब, आप बहुत बेहतर जानते हैं, आपने लोकसभा चुनाव भी देखे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी देखे। बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है,
वो जब भी मैदान में उतरती है तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वो भाजपा की ही मदद करती है। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के मतदाता दूसरे मतदाताओं से अलग नहीं है। जब हर 5 साल बाद सरकार बदलती है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि तमाम मतदाताओं का रुख सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होता है, इसलिए दूसरी पार्टी जीतती है। ऐसी सूरत में हम इनको अलग करके नहीं देख सकते कि अनुसूचित जाति कहाँ जाएगा और जो ठाकुर मतदाता हैं, जो ठाकुर बहुल स्टेट है ये, वो कहाँ जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी हिमाचल में अभी तक कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। वहाँ बड़े मुद्दे जो हैं वो अनुसूचित जाति के वोट कहाँ जाएंगे ये नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि हिमाचल प्रदेश दो तरह के लोगों का स्टेट है। एक तो फौज में उनकी बहुतायत है और दूसरा जवान जो है फौज में जाने के अलावा दूसरा सरकारी नौकरियों पर हिमाचल प्रदेश डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ इस समय ओल्ड एज पेंशन का है, क्योंकि जब भी अशोक गहलोत साहब या भूपेश बघेल साहब हिमाचल प्रदेश में दौरा करेंगे या किया है तो उनका यही कहना है कि हमने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। हिमाचल में कांग्रेस कह चुकी है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे देंगे, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर मौन है। वो इस मुद्दे को टालना चाहती है, चुनाव में मुद्दा नहीं बनने देना चाहती। दूसरा अग्निवीर योजना थी जो 4-4 साल की नौकरी देने की बात थी। हिमाचल के लोग बड़ी बहुतायत में फौज में हैं, तो ऐसे में दो ये बड़े मुद्दे हैं। उसमें भाजपा की कोशिश या बहुजन समाज पार्टी की कोशिश किसी तरह जातीय आधार पर बांट के और वोटों का ध्रुवीकरण अपनी तरफ करने की बात हो सकती है, लेकिन ये शांतिप्रिय राज्य जो है हिमाचल में कभी हिंसा नहीं होती चुनाव में और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। मैं समझता हूं कि लोग सुन सबकी रहे हैं, लेकिन 12 नवंबर को करेंगे वो अपने मन की। ਵੈਸੇ ਤਖਸ਼ਿਕ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਰੂ ਹੋਏਗੀ? देखिए, जो आम चुनाव में, आम विधानसभा चुनाव में भाजपा की कोशिश मुद्दों के बजाय उसको धर्म की तरफ मोड़ने की ज्यादा रहती है। वो लोगों को धार्मिक भावनाओं के साथ अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी बार कोई बात मुद्दा चलेगा। आप झंडू साहब, बहुत हो गया लंबा समय, हम तो टीवी चैनलों पर जो डिबेट देखते हैं या तो हिंदू मुसलमान होता है या भारत पाकिस्तान होता है या कब्रिस्तान शमशान होता है। ये मुद्दे या एजेंडा बना के टीवी चैनलों पर जो बहस हम देखते हैं अब उनसे मन भरने लग गया है। लोग कहते हैं कि आस्था की बात है, हम कहीं अपनी आस्था के मुताबिक कहीं भी किसी भी धर्म को माने, कहीं भी माथा टेके, कहीं भी अरदास करें, कहीं भी दुआ करें, प्रार्थना करें, लेकिन चुनाव के मौके पर आम तौर पर जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, उसके खिलाफ कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, नौकरियां और पुरानी पेंशन। और भाजपा का कोशिश यही है कि उन लोगों को उस तरफ ले जाया जाए जहां लोगों की आस्था है और आस्था के नाम पर भाजपा के खाते में वोट पड़ जाए। मैं समझता हूं कि अभी तक की जो स्थिति हमें दिखाई देती है, लड़ाई सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और कांग्रेस की थोड़ी सी स्थिति भाजपा से बेहतर नजर आती है हिमाचल प्रदेश में। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब उस लड़ाई को कितना भाजपा की तरफ मोड़ पाते हैं, ये तो चुनाव परिणाम ही आने के बाद ही पता चलेगा। झंडू साहब, ਤਖਸ਼ਿਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? हाँ, मैं समझता हूँ कि अभी आम आदमी पार्टी को और मेहनत करनी पड़ेगी। लड़ाई सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। ਤਖਸ਼ਿਕ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? मैं समझता हूँ झंडू साहब, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए एक राहत वाली बात थी कि पिछले 3 साल में 3 उपचुनाव हुए हैं। 2 उपचुनाव में भाजपा हार चुकी थी। आदमपुर में भाजपा कभी आज तक अपनी जमानत नहीं बचा पाई थी, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के कुलदीप बिश्नोई
भाजपा में आ गए, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाया, तो उनकी जीत तो निश्चित शुरू से ही थी, क्योंकि 1968 में जब चौधरी भजनलाल विधायक बने, उसके बाद आज तक पिछले 54 साल में भजनलाल जी या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ा हो, कभी आज तक उन्होंने चुनाव नहीं हारा है। विपरीत परिस्थितियों में भी भजनलाल जी की पत्नी जसमा देवी 1987 में, जब देवीलाल जी की 90 में से 85 सीटें आई थी, तब भी वो करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीती थी। यानी कि आदमपुर भजनलाल जी का गढ़ है। उन्होंने अपने खिलाफ किसी उम्मीदवार को जिंदा रहते या उसके बाद उनके परिवार ने पनपने नहीं दिया। जो भी विरोधी पार्टी का उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा हुआ, उसको उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। ऐसी सूरत में भजनलाल परिवार को आदमपुर से कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। अब ऐसी सूरत में जब भाजपा सरकार के 2 साल बाकी हैं, एक तो भजनलाल का गढ़, ऊपर से सत्तारूढ़ दल का समर्थन, सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार, फिर जेजेपी का समर्थन, फिर जाटों के कई उम्मीदवार का मैदान में उतरना, यानी कि ये चुनाव जो है कांग्रेस वर्सेस अदर्स था। फिर भी कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश ने 52,000 के करीब वोट लिए हैं, जो आज तक का विपक्षी उम्मीदवार का एक रिकॉर्ड है। हालांकि हम पहले से जानते थे कि भव्य बिश्नोई चुनाव जीतेगा, क्योंकि भजनलाल के गढ़ में आज तक कोई भी उनको मात नहीं दे पाया है। बीजेपी को खुशी ये है कि पहली बार वहां हरियाणा 1966 में हरियाणा बना था, उसके बाद भाजपा को पहली बार वहां कमल खिलाने का मौका मिला है, और ये उनके लिए खुशी की बात है। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? देखिए, आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से आई थी। आदमपुर में आपको ध्यान होगा, सोनाली फोगाट जो टिकटॉक स्टार थी, उनकी गुड़गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्हीं के पीए को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल साहब और मान साहब उनके घर गए, शोक व्यक्त किया, परिवार को सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया। तो एक उम्मीद ऐसी बनी थी कि शायद सोनाली फोगाट के परिवार का कोई सदस्य आदमपुर से चुनाव मैदान में उतरेगा, क्योंकि पिछले आम चुनाव में सोनाली फोगाट ने भाजपा के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा था, और ये माना गया कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य मैदान में उतरता है तो उसको सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों को भांपते हुए कुलदीप बिश्नोई साहब जो है उनके घर चले गए, परिवार को मना लिया, और उपचुनाव में सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मुद्दा बना ही नहीं, क्योंकि सोनाली फोगाट का परिवार कुलदीप बिश्नोई के साथ हो गया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से भाजपा से गए उम्मीदवार को दल बदलने के बाद सत्येंद्र सिंह को टिकट दिया। सत्येंद्र सिंह की छवि बहुत अच्छी है, वो कांग्रेस के टिकट पे भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीते नहीं। अब वो कांग्रेस टिकट के भाजपा में जाने के बाद उनको लगा कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आ गए तो उनके लिए जगह नहीं है, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, और ये लग रहा था कि यहाँ आम आदमी पार्टी की शुरुआत आदमपुर से ठीक होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि सत्येंद्र सिंह को 3,000 कुछ वोट मिले, वो अपनी जमानत गंवा बैठे। ऐसी सूरत में हाल फिलहाल केजरीवाल साहब की पार्टी के लिए हरियाणा में कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। भले ही केजरीवाल साहब हरियाणा के बेटे हैं, भिवानी जिले में शिवानी के वो रहने वाले हैं, लेकिन आदमपुर के उपचुनाव में जता दिया है कि यहाँ भी आम आदमी पार्टी को अभी और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया सर, शुक्रिया साहब।